हाँ मैम, अभी दो। ठीक है. So in the previous lecture we conduct experiment number 1, that is the study of UTM machine, that is universal testing machine, which is used for the performance of operation on like compression testing, tensile testing, bending, shearing. So these are all the operation which are performed on the basis of uh, specimen. So we use here the mild steel specimen as a ductile material for the performance of tensile, compression, shearing, and bending operation. Okay. So in the previous experiment, we study all the basic parameters which is required for the UTM machine. So in the UTM machine, there are two units like loading unit and controlling unit. Okay. So in the loading unit, all the adjustment parameters like specimen fixing, then load measuring devices, so which are all we were study in the loading unit. And in the control unit, all the controlling parameter like load changing devices, then measuring devices, so which are all used in the controlling parameter. Okay. So now today we are going through experiment number 2, that is the aim is tensile test on the metal, which is second experiment. Tensile test on metal comes under the CO2, and our CO2 is analysis of tensile test, compression test, and shear test on the metal. Okay. So you must know what is the course outcome of particular experiment. So the course outcome of this experiment number 2 is the analysis of tensile test, compression test, and shear test. Okay. So this is experiment number 2. Aim is to perform the tensile test on the metal. Let us see what are the objectives of this experiment. The objective of this experiment is, here we are going to perform the tensile test, and for that we use a specimen as a mild steel, and mild steel is a ductile material which will have a certain amount of deformation. Okay. So इसमें हम लोग क्या find करेंगे? So we are going to determine the limit of proportionality. In the previous lecture, I told you what is the state strain diagram for the ductile and brittle material. So in the ductile material diagram, we see the limit of proportionality starting from 0 to A. Then elastic limit comes, then yield point comes, ultimate strength, Young modulus, then how the elongation comes, what are their percentage, then what are the actual area and what are the elongated area. So ये सब पैरामीटर हम लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं. So these are the objectives of the tensile testing machine on the ductile material, like to find out the limits of proportionality, इलास्टिक लिमिट कितनी होनी चाहिए, यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होंगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी होंगी, यंग मॉडुलस ई कितना होगा. तो हर एक के फॉर्मूले भी हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में पढ़े हैं. व्हाट आर द बेसिक फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग ऑल दिस पैरामीटर. ठीक है. सो नेक्स्ट, व्हाट इज द एपरेचर्स, कौन से एपरेचर्स इसमें यूज होते हैं. तो एज वी नो द यूटीएम मशीन हमको यूज करनी पड़ेंगी. ऑन द यूटीएम मशीन वी विल परफॉर्म मेनी ऑफ द ऑपरेशन ऑन द डक्टाइल मटेरियल. तो उसमें हम लोग माइल्ड स्टील मटेरियल यूज कर रहे हैं एज ए स्पेसिमन, उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. जब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ता है. ग्राफ मतलब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम शो करना पड़ता है. तो वो डायग्राम आपके ग्राफ पेपर पे शो होती है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है. तो पहले के सिस्टम में, पहले के यूटीएम सिस्टम में कंप्यूटर्स अटैच नहीं होते थे, तो हम लोग मैन्युअली स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फाइंड करते थे. ठीक है. तो अभी डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम हम लोग अटैच कर सकते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी विल डायरेक्टली गेट द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम. ठीक है. उसके बाद सिंपल स्केल हम लोग इसमें यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द स्पेसिमन, एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्पेसिमन और इनिशियल लेंथ ऑफ द स्पेसिमन. उसके बाद वर्नियर कैलिपर हम लोग यूज करते हैं. तो वर्नियर कैलिपर यूज इसलिए करते हैं कि जब हम लोग टेंसाइल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं स्टील मटेरियल, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसमें इलोंगेशंस आते हैं. ठीक है. तो एज यूजुअल अगर हम लोग किसी, फॉर एग्जांपल रबर को हम लोग खींचते हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन देंगे तो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होंगे. ठीक है. तो डिफॉर्मेशन अगर आगे है तो उसमें चेंजेस होंगे.
लाइक उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, उसका डायमीटर चेंज हो सकता है, वो हम लोग फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो ये हमारा एम टू परफॉर्म टेंसाइल टेस्ट ऑन द मेटल। उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग ये सारे पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी आएगी, उसका इलोंगेशन कितना आएगा, एरिया कितना आएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को ये सारी चीजें लगेंगी, जैसे यूटीएम मशीन का सेटअप लगेगा, उसमें टेंसाइल मशीन, टेंसाइल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो टेंसाइल का एडजस्टमेंट लगेगा आपको। ठीक है, जैसे टेंसाइल करना है तो टेंसाइल का एडजस्टमेंट आपको लगाना पड़ेगा, कंप्रेशन करना है तो कंप्रेशन का लगाना पड़ेगा, बेंडिंग का करना है तो बेंडिंग का एडजस्टमेंट लगाना पड़ेगा। मशीन एक ही रहेंगी लेकिन उसके एडजस्टमेंट अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। उसमें हम लोगों को स्पेसिमेन यूज करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि इलोंगेशन करना है, ठीक है, टेंसाइल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपको पर्टिकुलर एक स्पेसिमेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने माइल्ड स्टील सिलेक्ट किया है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम निकलता है, तो उसके लिए हमको ग्राफ पेपर लगेगा। मेजरिंग डिवाइस लगती है, तो स्केल एज ए नॉर्मल स्केल हम लोग यूज करते हैं इसमें लेंथ फाइंड करने के लिए। उसके बाद वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं फॉर द मेजरिंग ऑफ ए ऑल द पैरामीटर आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके पहले के ही लेक्चर में बताया था कि व्हाट हाउ इट शो द यूटीएम मशीन। तो ये हमारी, एक मिनट, ये हमारी यूटीएम मशीन है। ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ यूटीएम मशीन। ठीक है, ये जो पहला ऑपरेशन आप लोग देख रहे हैं ये पॉइंट, तो ये जो है का और ये नीचे का, ये दोनों, तो इस दोनों के बीच में हम लोग जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, जैसे मेरे को अभी स्टील का रॉड लेना है, तो इन दोनों के बीच में मैं स्टील के रॉड को फिक्स करूंगी। ठीक है, तो जो भी कोई ऑपरेशन है, टेंसाइल है, कंप्रेशन है, उसके बीच में मैं फिक्स करूंगी। एंड इसमें हम लोग जो कंट्रोलिंग पैरामीटर्स है, मैंने जैसे बताया था हमारे पास दो यूनिट होते हैं इसमें, कंट्रोल यूनिट ये वाला, और दूसरा इधर दिस आर दी लोडिंग यूनिट। ठीक है, तो लोडिंग यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिमेन को एक बार फिक्स कर देते हैं, उसको मीटर लगा देते हैं, लोड लोड मेजरिंग डिवाइसेस इसको लगाते हैं, क्योंकि एक्चुअल लोड जो भी हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से 4-5 लोड कंसीडर करेंगे। पहले 5 किलो न्यूटन देंगे, फिर 10 देंगे, 15 देंगे, 20 देंगे, मतलब जब तक उसका ब्रेकिंग नहीं होता है तब तक हम लोगों को लोड इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, तो वो लोड कितना है वो मेजर करने के लिए यहाँ पे लोड मेजरिंग डिवाइसेस दी हुई रहती है। ठीक है, इधर कंट्रोल इंटेंशन मीटर लगाते हैं ना। यहाँ पे जो है ना, ये जो एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे हम लोग स्पेसिमन फिक्स करेंगे। ठीक है, इसके बाजू में वो जो एक्सटेंशियोमीटर आप बोल रहे हैं ना, इसके बाजू में फिक्स करते हैं। ठीक है, तो इसके बाजू में जब फिक्स करेंगे तो आपका जो फोर्स लगाने के बाद जो भी इलोंगेशन आएंगे, तो इलोंगेशन डायरेक्टली हमारे डिवाइस पे डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले डिवाइसेस बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज में उसको। तो यहाँ पे डायरेक्टली शो किए जाएंगे ऑन द गेज। ठीक है, तो आप लोगों को पर्टिकुलर जाके उसमें मेजर नहीं करते बैठना है कितना आया है क्या है स्केल से, तो डायरेक्टली वो मीटर पे शो करता है कि कितना इलोंगेशन आया है एट ए पर्टिकुलर अप्लाइड फोर्स। तो फोर्सेस हम लोगों को 4-5 दे के चेक करना है, पहले 15, फिर 20, 25, ऐसे हम लोग फोर्सेस को बढ़ाते जाएंगे जब तक उसका ब्रेकिंग नहीं होता है। ठीक है, ये तो बाकी चीजें लगेंगी, जैसे जो भी पर्टिकुलर अगर कोई मशीन को हम लोगों को यूज में लेके आना है तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक सप्लाई लगेगा, कंट्रोलिंग डिवाइसेस लगेंगी, ऑपरेटर लगेगा। तो ये सारी सिस्टम तो आपको नॉर्मली पता ही लगती है कोई भी मशीन में। इसके पहले के लेक्चर में हमारा ये पार्ट हो चुका है ऑलरेडी। प्रोसीजर क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपके घर पे आपने देखा होगा, देखे होंगे कि रॉड होता है, स्टील का रॉड। ठीक है, तो हमारी लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में हम लोग उसको सलाख बोलते हैं। ठीक है, तो वो सलाख को सपोज कंसीडर करो एक टुकड़ा हम लोगों ने लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले उसका ओरिजिनल लेंथ कितना लिया है आपने, जो भी स्पेसिमेन कंसीडर किया है उसका ओरिजिनल लेंथ और उसका ओरिजिनल डायमीटर, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। स्केल से आप नॉर्मली लेंथ फाइंड कर सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर हम लोग डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल डायमीटर आपको सबसे पहले फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका स्पेसिमन है
वो स्पेसिमन आप दो जॉ के बीच में, मतलब अपर जॉ एंड लोअर जॉ, दोनों जॉ के बीच में फिक्स करोगे, ठीक है। उसके बाद उसको आप एक्सटेंशन मीटर अटैच करोगे। मैं वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ आगे जाके, तो वीडियो में आपको क्लियर ही हो जाएगा। एक्सटेंशन मीटर लगाओगे, फिर आप लोग लोड अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। लोड अप्लाई कहाँ से करोगे? लोडिंग यूनिट से। तो स्टार्टिंग लोड आप लोग देंगे। पहले तो आप लोगों को चेक करना है कि सभी जीरो पे है क्या, सभी मीटर जीरो पे है क्या इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है। देन यू हैव टू स्टार्ट दी लोडिंग, मतलब आप इनिशियल लोडिंग स्टार्ट करोगे। 15 किलो न्यूटन अगर देते हैं तो 15 किलो न्यूटन पे कितना इलोंगेशन आता है वो आपको चेक करते जाना है, ठीक है। 15 किलो न्यूटन दिया, फिर वो एक्सटेंशन मीटर पे देखना है आपको कि कितना एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। तो टेक रीडिंग मोर फ्रीक्वेंटली एज इल पॉइंट इज अप्रोचेस। मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इसके पहले एक्सप्लेन करके बताया कि सबसे पहले क्या होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट में इलास्टिसिटी अप्लाई होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। मतलब जितना आपका स्ट्रेस रहेगा उतना ही स्ट्रेन आएगा। पॉइंट में कोई भी मटेरियल एकदम से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यील्डिंग इलास्टिसिटी परफॉर्म स्टार्ट होता है। कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस और कॉन्टेक्ट स्ट्रेन साथ में आते हैं। उसके बाद आपका यील्डिंग पॉइंट आता है। यील्डिंग पॉइंट के बाद फिर इलोंगेशन खत्म हो जाता है एंड देन यू विल गेट ए ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये जो आपका स्ट्रेस स्टेट डायग्राम का प्रोसेस जो है वो यही पे भी फॉलो होता है। स्टार्टिंग में आप लोग इलास्टिसिटी परफॉर्म करोगे इनिशियल लोड लगाने के बाद। तो जैसे जैसे आप लोग लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका डिफॉर्मेशन चेंज होते जाता है, ठीक है। तो पहली स्टेप आपको ओरिजिनल लेंथ और डायमीटर फाइंड करनी है स्पेसिमेन की। उसके बाद उस स्पेसिमेन को फिक्स करना है इन द जॉ। देन लोड एप्लीकेशन अप्लाई करना है, जो भी इनिशियल डेटा है उसको रिकॉर्ड करके जाना है। देन यू हैव टू अप्लाई दी पर्टिकुलर इनिशियल फोर्सेस आपको चेंज करते जाना है जब तक आपको यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है। और अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट ए सर्टेन इलोंगेशन। वो सर्टेन इलोंगेशन आपको मेजर करने हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी है जब तक आपका पॉइंट ब्रेक, जब तक आपका स्पेसिमेन ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है ऑब्जर्वेशन में? मटेरियल। मटेरियल कौन सा है हमारा? माइल्ड स्टील, ठीक है। अभी माइल्ड स्टील मटेरियल एज एन स्टेप्स में आप लोग यूज कर रहे हो, तो उसका ओरिजिनल लेंथ कितना लिया है वो आपको फाइंड करना है। मतलब कितना मीटर है आपका, या कितना सेंटीमीटर में लेना है या मीटर में लेना है, कैलकुलेशन आपको एक यूनिट में करना है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, लेंथ कितना में आपने लिया है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसका डायमीटर क्या है ओरिजिनल। देन उसका एरिया, सर्कुलर रॉड है तो π/4 d स्क्वायर से आपको एरिया फाइंड करना है। लेंथ जो ओरिजिनल वाली होंगी वो, डायमीटर ओरिजिनल वाली होंगी वो, एरिया बाय यूजिंग फार्मूला π/4 d स्क्वायर से आपको एरिया फाइंड करना है इन mm², ठीक है। ये कब करना है? ये इनिशियल डायमेंशन में, ठीक है। फिर आप करोगे उसके ऊपर ऑपरेशन। ऑपरेशन करने के बाद आप लोग उसको लोडिंग चेंज करोगे, तो उसका ऑब्जर्वेशन टेबल है आगे में, उस हिसाब से आपके चेंजेस दिखते जाएंगे। फाइनल डायमेंशंस में आपको क्या फाइंड करना है? इलोंगेशन होने के बाद आपके स्पेसिमेन की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो ये लेंथ कैसे आप फाइंड करोगे? आपका जो स्पेसिमेन है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, तो आपको मैन्युअली वो दो पार्ट को जोड़ के उसका लेंथ मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। उसका डायमीटर भी सेम, आपको जहां से ब्रेक हुआ है उस पोर्शन पे आपको डायमीटर उसका चेक करना है, और अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया आफ्टर द इलोंगेशन बाय यूजिंग फार्मूला π/4 d स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करना है, ठीक है। जैसे मैंने सीरियल नंबर 1 पे लोड अप्लाई किया है 10 किलो न्यूटन, तो 10 किलो न्यूटन में हमारी लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ, वो आपको यहाँ पे दिखना पड़ेगा। फिर उसका इलोंगेशन कितना आया था 10 किलो न्यूटन पे, वो इलोंगेशन आपको स्केल से या फिर वो आपका मीटर जो लगा एक्सटेंशन मीटर उसके ऊपर डिस्प्ले होगा, तो डिस्प्ले जो डेटा रहेगा वो आपको अकॉर्डिंग टू फोर्स यहाँ पे दिखना पड़ेगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। लोड जैसे 10 किलो न्यूटन दिया है, मतलब हमने स्टार्टिंग में लिया है। एरिया आपको पता है, आफ्टर इलोंगेशन इसका एरिया क्या रहेगा π/4 d स्क्वायर, जो भी डायमीटर उसकी रहेंगी वो। तो इससे आपको स्ट्रेस मिलेंगी इन न्यूटन पर mm²। सिमिलरली स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है इंक्रीजिंग लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। उसकी ओरिजिनल लेंथ जो हम लोग स्टार्टिंग में फाइंड करेंगे वो, और इंक्रीजिंग लेंथ मतलब 10 किलो न्यूटन जब आपने अप्लाई किया है तब कितना है, तो यहाँ से आपको स्ट्रेन मिलेंगे। सिमिलरली ये परफॉर्मेंस आपको 5 या 4 जो आपकी जब तक उसका ब्रेकिंग नहीं होता है तब तक फोर्सेस आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है। 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 25, 30, 35। तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट ए कैलकुलेशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्ट्रेस एंड रिस्पेक्टिव स्ट्रेन, ठीक है।
लोड जो आप लोग कंसिडर करते जाओगे वो यहाँ पे डालना है आपको, लेंथ अकॉर्डिंगली कितना है वो यहाँ पे आपको डालना है, उसका इलोंगेशन आपको एक्सटेंशन मीटर पे दिखेगा, ये डिस्प्ले होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला लोड पर यूनिट एरिया इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंड स्ट्रेन का फॉर्मूला इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, मतलब फोर्स लगाने के बाद जो आपकी लेंथ रहेंगी वो डिवाइड बाय बिफोर ऑपरेशन जो आपकी ओरिजिनल लेंथ रहेंगी वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करना है। अकॉर्डिंगली यू विल गेट ए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द माइल्ड स्टील, जो मैंने आपको बताया था एक्स डायरेक्शन पे रहेगा स्ट्रेस एंड वाई डायरेक्शन से रहेगा स्ट्रेन, ठीक है। सॉरी, एक्स डायरेक्शन से रहेगा इलोंगेशन इन परसेंटेज दैट इज स्ट्रेन, एंड वाई डायरेक्शन में रहेगा स्ट्रेस दैट इज सिग्मा, ठीक है। सो ये 0 to 2 जो पॉइंट है, दिस इज ए इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शनल इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद 2 to 3 जो रहता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्ट्रेस एंड कॉन्टैक्ट स्ट्रेन रहता है। 3 के बाद यील्डिंग पॉइंट स्टार्ट होता है। 4 पे एक अल्टीमेट पॉइंट आता है जहां तक इलोंगेशन हो सकते हैं, इसके बाद इलोंगेशन नहीं होता है, तो इसके बाद अगर फिर से 4th पॉइंट के बाद अगर आप फिर से फोर्स लगाओगे तो ये डायरेक्टली ब्रेकिंग कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो आपको फोर्स यहाँ से स्टार्ट करना है और ये पॉइंट जब तक आता नहीं तब तक आपको फोर्सेस लगाते जाना है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम होने तक जो भी आपके स्पेसिमेन में चेंजेस आते हैं वो स्पेसिमेन के चेंजेस आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में शो करने, ठीक है। तो दिस इज फॉर दी डक्टाइल मटेरियल, तो हमने हमारे टेंसाइल ऑपरेशन के लिए डक्टाइल मटेरियल यूज किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू विल गेट दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन टेबल फिल करना है। उसमें और भी कुछ पैरामीटर आपको फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, जैसे आपको पहले बोलेंगे कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फाइंड करो, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया है लोड एट लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टू दी ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब जो हमने ये डायग्राम दिया है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मतलब 0 to 2 ये पॉइंट में आपका लोड कितना लगाया है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग लोड हम लोगों ने जैसे 10 किलो न्यूटन लगाया, तो आपको ये 10 किलो न्यूटन लोड देना पड़ेगा एज ए लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लोड, ठीक है। और उस हिसाब से फिर उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन न्यूटन मीटर, ठीक है। उसके बाद इलास्टिक लिमिट, मतलब नेक्स्ट आपने लोड कितना लगाया है व्हेन द इलास्टिसिटी परफॉर्म, तो उसका लोड आपको यहाँ पे पुट करना है, एरिया वही कॉमन रहेगा, यू विल गेट द इलास्टिक लिमिट इन न्यूटन। यील्ड पॉइंट मिलने तक आपका लोड कितना था वो आपको पुट करना है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जब आपको मिली तब उस केस में आपका लोड कितना दिया है, टेंसाइल लोड, वो आपको लिखना है यहाँ पे डिवाइड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड फाइनली यू हैव टू फाइंड आउट द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों को मिलेगा यंग मॉडुलस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 चीजें फाइंड करनी पड़ती है, स्टार्टिंग में ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल डायमीटर फाइंड करना, उसका यूज करके एरिया फाइंड करना π/4 d स्क्वायर से, ठीक है, ये बिफोर ऑपरेशन। फिर ऑपरेशन होने के बाद आपको चेक करना है कि इलास्टिक लिमिट पे लोड कितना लिया है, फिर यील्ड पॉइंट पे कितना लिया है, फिर ब्रेकिंग पॉइंट पे कितना लिया है, मतलब इलास्टिक लिमिट परफॉर्म करते हो आप तब कितना लिया है, ये लोडिंग आपको चेक करने पड़ेंगे। इलोंगेशन होने के बाद आपकी ओरिजिनल लेंथ इलोंगेटेड लेंथ कितनी आई है और इलोंगेटेड डायमीटर कितनी आई है, उसका एरिया कितना आया है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। एंड देन यू विल हैव टू परफॉर्म दी ऑब्जर्वेशन टेबल बाय कंसीडरिंग 4 to 5 लोड जब तक आपका ब्रेकिंग नहीं होता है। एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दिस पैरामीटर्स, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, ये सब चीजें आपको फॉर दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए आपको फाइंड करना पड़ता है, और अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यूज आएंगे उस हिसाब से हम लोग मैन्युअली इसका ग्राफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी कंप्यूटर सिस्टम में भी डायरेक्टली ग्राफ मिलता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कभी कभी कुछ सिस्टम तो कंप्यूटर भी कनेक्टेड नहीं होते हैं तो हम लोग मैन्युअली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सारी चीजें हमको जब मिलेंगी तो स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन हम लोग ये पॉइंट्स को ड्रॉ करके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल पॉइंट, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का पॉइंट लेंगे जितना भी आएगा, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर यील्ड स्ट्रेंथ, फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड देन फाइनल ब्रेकिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग एक कर्व फाइंड कर सकते हैं, उसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर दी डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, फॉर दी टेंसाइल ऑपरेशन। तो इस तरीके से आप लोगों को टेंसाइल ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
इसका एक वीडियो है जो आप लोग देख लो अभी, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा यूटीएम मशीन दिखती कैसी है, उसका ऑपरेशन होता कैसे है। ठीक है, आवाज येतोय का बेटा? कार्तिक आवाज येतोय का? मॅम आवाज येत आहे पण इको साऊंड होत आहे. हो, मी एक साउंड बंद कर. मॅडम व्हिडिओचा साऊंड बंद आहे वाटते. व्हिडिओ साऊंड येत नाही का? थोडा आवाज कमी आहे, मग नंतर पुन्हा वाढलेला आहे. बघा, मी तुम्हाला आयडिया तर दिलेलीच आहे की हे ऑपरेशन परफॉर्म कसे होते. ठीक आहे, तुम्ही व्हिडिओ बघा, मी इथनं एक्सप्लेन करून सांगते. ठीक आहे, हा जो आहे हा आहे आपला माइल्ड स्टील स्पेसिमन. ठीक आहे, हा माइल्ड स्टील स्पेसिमन आपण ही तुमची यूटीएम मशीन आहे, ही आहे कंट्रोल युनिट आणि हा आहे लोडिंग युनिट. ठीक आहे, आता हा आपण स्पेसिमन इथे फिक्स करणार आहोत. हा तुमचा अपर जॉ आणि हा तुमचा लोअर जॉ. ठीक आहे, या अपर आणि लोअर जॉच्या मध्ये आपण याला फिक्स करणार आहोत. इथे फिक्सिंग अरेंजमेंट राहते, यामध्ये आपण डायरेक्टली इथे स्पेसिमन फिक्स करू शकतो. हा इथे फिक्स करत आहे. टेन्साइल ऑपरेशन आपल्याला परफॉर्म करायचं आहे. दिस इज टोटल ए लोडिंग यूनिट. ठीक है, ये पूरा जो सिस्टम है दिस इज लोडिंग यूनिट. कंट्रोल यूनिट अलग इसके बाजू में रखा जाता है विथ एन कनेक्शन. तो अभी सबसे पहले यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं स्पेसिमन को इन दी लोडिंग यूनिट. ठीक है, ये जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ से हम लोग जो फोर्स अप्लाइड करते हैं जैसे स्टार्टिंग टू एंड तक, मतलब बेसिक फोर्स टू ब्रेकिंग पॉइंट तक जो फोर्स लगाते हैं वो हम लोग ये लोडिंग कंट्रोल यूनिट से लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फोर्स अप्लाइड कर सकते हैं. ये अभी हो गया आपका स्पेसिमन फिक्स. ये जो अभी लगा रहे दीज आर दी एक्सटेंशियोमीटर. ठीक है, ये इसलिए लगाया जाता है कि आप लोग जो भी फोर्सेस लगाते हो वो फोर्सेस लगाने के बाद ये स्पेसिमन में क्या इलोंगेशन आया है. जैसे मैंने अगर 15 किलो न्यूटन फोर्स लिया है तो 15 किलो न्यूटन फोर्स से मेरा जो स्पेसिमन है वो कितना इलोंगेटेड हुआ है, तो वो आप लोग ये स्केल से मेजर कर सकते हो. दिस इज द एक्सटेंशियोमीटर स्केल, या फिर हम लोग नॉर्मल भी इसको स्केल ही बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका जो मीटर रहेगा, एग्जैक्ट इसका जो स्केलिंग आएगा वो यहाँ पे डायरेक्टली मीटर पे शो किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जीरो पोजीशन पे है क्या. ठीक है, ये दोनों जीरो पोजीशन पे है क्या. तो ये हो गया कि उसके बाद हम लोग फोर्स का मीटर चेक करेंगे. जो आप लोग फोर्स अप्लाइड करोगे वो जीरो पे है क्या, वो आपको चेक करना पड़ेगा. ये देखो, आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये इनिशियल फोर्सेस जीरो कंडीशन पे है क्या. उसके बाद आप स्टार्ट करोगे फोर्सेस अप्लाई करना अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जो भी आपको अप्लाइड करना है फोर्स. ठीक है, दिस इज द फोर्स कंट्रोल यूनिट जिसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट, बैल्व हम लोग बोल सकते हैं उसको.
तो हम लोगों ने जैसे 10 किलो न्यूटन अगर फोर्स लगाते हैं तो 10 किलो न्यूटन का इलोंगेशन कितना आया है वो हम लोगों को 4-5 फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे 5-6 बार हम लोग करेंगे जब तक हमारा पॉइंट ब्रेक नहीं होता है। ये सेम प्रोसेस फॉलो किए है फॉर दी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस। अभी पर्टिकुलर फोर्सेस के बाद आपका ये पॉइंट अभी आ गया है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद, ठीक है। सबसे पहले जो भी बेसिक फोर्स दिया होगा तो इलास्टिसिटी परफॉर्म हो गई होंगी, उसके बाद इलास्टिक लिमिट आई होंगी, उसके बाद यील्ड स्ट्रेंथ आया होगा, उसके बाद आता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। और ये देखो इलोंगेशन आपको दिख रहे हैं, पहले इतनी इलोंगेशन नहीं थे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप फोर्सेस चेंज करते जाते हो बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसमें इलोंगेशन आते जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर सर्टन फोर्स जैसे ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ खत्म हो जाएंगी इसका ब्रेकिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। ये देखिए आप भी यहाँ पे ब्रेकिंग, ये देखो ये हो गया ब्रेक, ठीक है। तो पर्टिकुलर फोर्स के बाद ये आपका स्पेसिमन टूट जाएगा विच इज कॉल्ड एज ए ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये एक बार टूट गया तो आपको इसको लेना है मैन्युअली, उसको इस तरीके से ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके इसका ब्रेकिंग डायमीटर मतलब इलोंगेटेड डायमीटर और इलोंगेटेड लेंथ ये आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। इस तरीके से इसको ज्वाइन करेंगे। then you have to find two parameter, length of elongation and diameter, ठीक है। फिर उसका डायमीटर का यूज करके हम लोग एरिया फाइंड करेंगे आफ्टर द इलोंगेशन। ये इस तरीके से मैन्युअली आपको ज्वाइन करना है। ये वर्नियर स्केल हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमीटर। ये लोग डायमीटर मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डायमीटर मेजर करने के बाद हम लोग इसका लेंथ मेजर करेंगे। ये अभी चेक कर ले कितना डायमीटर आ रहा है, 8-9-10 कुछ ना कुछ mm में डायमीटर आएगा आपका। उसके बाद हम लोग इसका लेंथ मेजर करेंगे स्टार्टिंग टू इलोंगेटेड पॉइंट, ठीक है। हम लोगों को ओरिजिनल लेंथ पता रहता है, उसके बाद इलोंगेटेड लेंथ कितना है मतलब यहाँ से यहाँ तक ये इलोंगेटेड पोर्शन है, तो ये इलोंगेटेड पोर्शन का लेंथ कितना है वो हम लोग फाइंड करेंगे। एंड देन आप लोग उसका यूज करके डायमीटर का यूज करके एरिया फाइंड करोगे। और एक बार ये पैरामीटर्स आपको मिल गए तो आप लोग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। जैसे अभी ये ऑब्जर्वेशन टेबल है तो सबसे पहले ओरिजिनल लेंथ अगर उसकी 18 mm है और उसका एरिया हम लोग फाइंड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला π/4d²। तो उसका एरिया इतना आया है। ओरिजिनल गेज लेंथ हम लोग कंसिडर करते हैं जैसे 90 mm है, ओरिजिनल पैरेलल लेंथ हमारी 170 mm है। तो आफ्टर इलोंगेशन आपको ये 3 पैरामीटर फाइंड करना है। एंड अकॉर्डिंगली फॉर सॉल्विंग फॉर द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन आप लोगों को ये सारी चीजें फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, परसेंट ऑफ रिडक्शन एरिया। तो सभी अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो हम लोग जैसे मैंने आपको अभी पीपीटी में बताया हम लोग को वो पैरामीटर फाइंड करने हैं फॉर दी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोगों को फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोगों को ये चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले दिस इज दी इलास्टिसिटी परफॉर्मेंस, उसको हम लोग हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं। देन यहाँ पे इलास्टिसिटी परफॉर्म होंगी, उसके बाद हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी पीपीटी में। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को सॉल्व करने हैं, उसके कैलकुलेशन करने हैं और उसका फिर मैन्युअली ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोगों को करनी पड़ती है इन दी प्रैक्टिकल ऑफ टेंसाइल टेस्ट बाय यूजिंग यूटीएम मशीन, ठीक है।